Hello everyone, today we are going to discuss about 23rd October static quiz question. We will discuss 5 questions and answer of this question. These are questions from the economic section. However, we have also tried to discuss about June section where we where we were getting the random subject like economy, environment, polity. But nowadays, because of some disturbance in my schedule, I'm just I have there's so many things that already have delayed, so I'm still trying to complete all the stuff. But I will try that there will be no any issue in next coming days. I hope so. Then there will be Diwali. Okay, so let's start, people. Thank you for tolerating me. As usual, if you people have any kind, I mean, usually the videos are very long, and if you do not have time, just put your time on, I mean, some relevant things, more efficient thing. Put your time on focus, put your time on active learning, put your time on recalling the fact that you have learned, because ultimately this is going to matter and the exam. There, no matter how many books you read, it doesn't matter how many time a book you have read, until and unless you have stored some story in your mind, you have recite and you recall what you have read, there would be no me. I have tried this from, I mean, actually मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये जनरली फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी सारी, देखो, हो सकता है मैंने इकोनॉमी से रिलेटेड बुक्स पढ़ी हो, बट शायद जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें फास्ट सेंस ऑफ नोइंग क्रिएट करता है। हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती कि कोई और कंसेप्ट हम डिस सबके अपना-अपना मेथड होता है। मे बी आई वाज़ हैविंग रॉन्ग मेथड एट द टाइम, but still in the initial phase we all are, have a lack of knowledge. So it's good to learn from the people's experience that active recall is very important. When you recall active ना तो आपको ये भी realize होता है कि where you are lacking, which concept is not clear to you or which is clear. So let me not waste my time and yours time. Let's move forward. Okay, let me have a pointer first. The question number one is the term for establishment having in that economy, the term for establishment having formal existence, okay, जिसका formal existence है, but with close to no operation or asset is called as, जहाँ तक मिलता है सिक इंडस्ट्री होती हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि मतलब जिसका एग्जिस्टेंस तो है लेकिन वो क्लोज है किसके, टू नो ऑपरेशन। सो लेट वी गोना सी लेटर इन। Which of the following technology is are considered as a fourth industrial revolution? Advent of mechanization, Internet of Things, of course, is a cyber physical system, maybe cognitive computing, of course, maybe advent of mechanization. So I would prefer to say only three. I'm not sure about the first one. Number three. Which of the following could be the reason for the failure of infrastructure project by the public sector enterprises? Failure of infrastructure project by public sector enterprise. Cost overrun, ineffective governance, lack of interministerial departmental coordination, optimum input-output ratio is rarely observed, leading to overcapitalization. Um, Maybe ineffective governance can be the issue. Okay, cost overrun can be the issue, or the I would say कि third can be the issue, right? कि जो ये मान लो कोई एक सेक्शन में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और दूसरे चीज़ का हमारे पास डेटा नहीं है, दूसरा सेक्शन उससे रिलेट करता है और उसका डेटा हमारे पास नहीं है क्योंकि वो एक कंप्लीटली दूसरी मिनिस्ट्री या दूसरा डिपार्टमेंट हो जाता है, तो सम टाइम ये ना जनरली एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए तो वो नेशनल मोनेटाइजेशन जो उसमें है, पाइपलाइन जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, गति शक्ति जो है हमारी, उसमें एक पोर्टल है कि भाई सारी मिनिस्ट्री है यहीं से वो करेंगे, यहीं से डेटा वेटा कुछ ऐसा है। वो एक हम ना उसका शॉर्ट्स बना के शॉर्ट्स बनाएंगे उस वीडियो का, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट जो भी परियोजना है वो वाली। सो मैं ना एक लिख देती हूँ, ओनली वन, ओके।
consider the following statements regarding company limited by guarantee. Okay, number 8. A company limited by guarantee is one in which, if the company goes bankrupt, those running it only have to pay a sum that had guaranteed to pay when it was set up. Number 1. Number 2. Such a company has no shareholders but is owned by a group of people called member or guarantor. Number 3. Usually, this structure is put in place for charitable organization and non-profit. How many of the above statement is are correct? I'm not sure, and I don't know. Right. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ गई हैं। ओके, जो बैंकिंग इसमें बेसिकली शायद वो होगा कि ये डिमांड डिपॉजिट वो नहीं रखती हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं रखती हैं। कि डिमांड बैंक में क्या होता है कि जब भी आपको मान लो आपने अपने बैंक में पैसे जमा करवाए और अभी आपको जरूरत है, आप गए और कहे कि हमें इतने पैसे वापस करो, वो आपको दे देंगे, राइट। ये कोई फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है कि आपको 10 साल के बाद लेना है, 5 साल के बाद लेना है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि जब आप चाहें आप उसे निकलवा सकते हैं। शायद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये वाली फैसिलिटी नहीं देती है इन कंपैरिजन टू बैंक। is a company registered under the Companies Act 1956 was primarily business is related to number eight, business of loans and advance. Maybe that can be the true. I'm not sure about this primary business. Acquisition of share, bonds, security issued by government or local authorities. Maybe they can do this right. Insurance and chit business. Agriculture activity. Mm, maybe only three. Mm, तो ओके, गोस्ट इकोनॉमी था, उसी इंडस्ट्री नहीं था, गोस्ट कंपनीज था। देखो, ए शेल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं शेल, और एक गोस्ट कंपनी इज द कॉर्पोरेशन विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन और सिग्निफिकेंट एसेट। These type of corporation are sometimes used illegitimately, such as to disguise business ownership from law enforcement or the public. Shell corporations act as a tax avoidance vehicle for legitimate business. ओके, ये वो वाला क्लोज था कि मतलब जो क्लोजनेस होती है ना, किसी क्लोज होती है कि कोई ना तो उनका किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन हो, ना ही किसी भी तरह के एसेट एग्जिस्ट करते हो। ओके, आई गॉट इट रॉन्ग। देखो, यही होती है लॉजिकल इशू। कभी है ना, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड तो करते हैं लेकिन हम ना लॉजिक ही गलत अप्लाई कर देते हैं कई बार। तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि हम, इसलिए तो क्या है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इससे आप एक्टिव रिकॉल का मेथड है, जिससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, नंबर 1। एक्टिव रिकॉल होगा, नंबर 2। एंड जो आपके लॉजिक एप्लीकेशन है वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस तरह के लॉजिक पुट करते हैं। इफ यू आर पुटिंग रॉन्ग लॉजिक, दैट यू कैन एनालाइज इट एंड मेक योरसेल्फ इंप्रूव, राइट। ओके, सो हमें पता चल गया गोस्ट कंपनी और शेल कंपनी जो एग्जिस्ट तो करते हैं बेसिकली, इसको जैसे टैक्स सेविंग के लिए, उस तरह से बचाने के लिए, इलिजिटिमेट तरीके से इनको वो किया जाता है। ओके, विदाउट एग्निबिशन, तो जिसका कोई ऑपरेशन ना हो, कोई सिग्निफिकेंट एसेट ना हो, बट एग्जिस्ट करती हो। इसके अलावा डिस्गाइज बिजनेस हो, ओनरशिप हो, लॉ एनफोर्समेंट से और पब्लिक से, और टैक्स अवॉइडेंस व्हीकल होता है एक तरह का। ये तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और जो ओके ओनली थ्री, इन्होंने क्या बताया है कि वन इज करेक्ट। यही हमने कहा था कि ये वाला इनकरेक्ट है, एडवांसमेंट ऑफ मैकेनिज्म नहीं। अभी यही सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कोग्निटिव कंप्यूटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया। इसके लिए हमें क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था उसमें क्या हुआ था, एडवांसमेंट ऑफ मैकेनाइजेशन हुई थी। लाइक स्टीम पावर जो आ गई थी, वाटर पावर आ गई थी, इस तरह की चीजें हुई थी। जब हम दूसरे सेकंड रिवोल्यूशन के, फर्स्ट रिवोल्यूशन में क्या हुआ, एडवांसमेंट ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनाइजेशन। इसके अलावा जो सेकंड रिवोल्यूशन हुआ था उसमें वो हुआ था कि जैसे मास प्रोडक्शन, उसके अलावा इस असेंबली लाइन सब रिवॉल्व कर जाता है, जैसे मास प्रोडक्शन और ये असेंबली लाइन जो थी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, असेंबली लाइन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिवॉल्यूशन रिवॉल्व अराउंड द मास प्रोडक्शन। जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी सिस्टम में हुआ था, ऑटोमेशन में हुआ था। जो फोर्थ है ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, किसमें इस एसोसिएटेड विद साइबर और फिजिकल सिस्टम। जब बस साइबर सिस्टम भी जुड़ जाए, फिजिकल सिस्टम भी जुड़ जाए साथ में। बेसिकली इसमें क्या है, जैसे कि ऑटोमेशन की तरफ होगा, डेटा एक्सचेंज इन टेक्नोलॉजी होगा, मोर डेटा बेस्ड है ये।
इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडस्ट्री में, वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड होगी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगी। ये सब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्मार्ट फैक्ट्रीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, बिग डेटा, रोबोटिक्स, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें होंगी। ओके। हाँ, नहीं, तो ये वही है कि एक बार हम रिकॉल करने चाहें तो क्या है, हमने सिख इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा जिसका आई मीन एग्जिस्ट तो करती है बट ऐसे कोई वर्किंग नहीं होती उनकी, ना ही उनके कोई एसेट्स तो एसेट होते हैं। फेक ओनरशिप होती है उनकी, बेसिकली क्या टैक्स, उसके लिए टैक्स को वो करने के लिए, बचाने के लिए बेसिकली यूज करते हैं, जिसको गोस्ट कंपनी या शेल कंपनीज भी हम बोलते हैं। ओके। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एडवांसमेंट ऑफ मैकेनिज्म था। सेकंड वही असेंबली लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, ये जैसे भी ये ग्रिड वगैरह मास प्रोडक्शन में हो गया। थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ऑटोमेशन आ गया। फोर्थ की बात करें तो मोर एडवांसमेंट, जैसे एआई आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट ऑफ थिंग आ गया, रोबोटिक्स आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। डेटा पे मोर। क्वेश्चन नंबर सी। ओके, रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से रीजन है? ऑल फोर, कहीं ना कहीं सारे जिम्मेदार हैं। हमने क्या कहा था, बेसिकली मैंने यही सोचा था कि ये लिख देंगे, ये ज्यादा रेलेवेंट लगता है कहीं ना कहीं। पर ये सारे इशू भी हो ही सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे क्या है, गवर्नमेंट में तो कुछ भी हो सकता है। जो जैसे इन्होंने वही थ्योरेटिकल बेस है, लॉजिकल बेस है, आपका कहाँ लॉजिक, कौन सा लॉजिक पे शूट सूट करता है। ये देखो कहीं ना कहीं कॉस्ट ओवररन भी इशू होता है, वन ऑफ द मेजर रीजन है कि सम केसेस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज एक्सीड, कुछ चीजों में ना प्रोजेक्ट होने टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लीडिंग टू एलिवेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट सो मच, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी बहुत इंक्रीज कर जाती है। एंड प्रोजेक्ट इटसेल्फ बिकम वायबल एट अ टाइम ऑफ डिसलॉन्चिंग और डिले इट्स ब्रेक इवन पॉइंट्स। ओके। सो यही है कि ऑप्टिमम ये हम ये भी ऑब्जर्व नहीं करते, जिसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन भी नहीं है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में, इनइफेक्टिव गवर्नेंस, से सारे इशू हैं। तो इसमें से कुछ अंडरस्टैंड आपको समझा। नेक्स्ट, फुल स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन इज सी इज राइट, ऑल थ्री यूजुअली द स्ट्रक्चर। ओके, दिस एंड दिस, लेट मी, तो सारी बातें सही हैं। बेसिकली इनमें कोई शेयर होल्डर नहीं होता, बस गारंटी है, इसको आप मेंबर बोलते हो, वो होते हैं। तो एक पर्टिकुलर सम पे गारंटी की जाती है कि भाई अगर कंपनी फेल भी हो जाती है, बैंकरप्ट भी हो जाती है, वो इतना सम पे करेंगे, बस वही गारंटी होती है। और ये यूजुअली ये ना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है कि मान लो अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो वो फिर से री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस में, अगर फेल हो गए हैं तो दे शील्ड फ्रॉम द डेब्ट इट मे हैव। ओके, ऑलराइट। तो एक बार हम ये भी पढ़ देते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज वन। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी होती है कि अगर वो कंपनी बैंकरप्ट भी हो गई तो जो उसको रन कर रहे हैं ना, इट ओनली हैव टू पे सम दे हैड गारंटी टू पे व्हेन इट वाज सेट अप। ठीक है। ये कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आती है। इसमें क्या कहते हैं कि मींस द कंपनी हैविंग द लायबिलिटी टू इट्स मेंबर limited by the memorandum to such amount as member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wounded up। फिर मान लो जब उसका अगर उसको कुछ वाउंड अप ही करेंगे ना, तो जिस अमाउंट पे वो जैसे मेमोरेंडम साइन हुआ बस वही पे करेंगे। इसको सिंपली टर्म में पुट किया जाए तो यहाँ पे कोई शेयर होल्डर नहीं होते हैं, बट जो इस कंपनी को ओन करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम गारंटर बोलते हैं वो होते हैं। ओके। अगर जब ये अगर वाउंड करते हैं तो उन्हें बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो हमारे एक छोटा अमाउंट पे करना होता है, सर्टेन अमाउंट पे करना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर उनको कंपनी अपनी वाउंड अप करनी है, द एबिलिटी इफ द कंपनी फेल इज लिमिटेड टू दिस अमाउंट। यो ये यूजुअली स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि जब वो कोई ऐसे प्रॉफिट अर्न किया जाता है बाय कंपनी तो वो री इन्वेस्ट कर देंगे इनटू बिजनेस। उसके लिए वो डोनेशन सीख कर सकते हैं, फंड भी इकट्ठा कर सकते हैं जो इसके मेंबर होते हैं इस कंपनी के, ऑन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर ये फेल हो जाती है तो ये क्या होते हैं, ये शील्डेड फ्रॉम द डेब्ट ऑफ इट में है क्योर्ड। ये बस वही चीज है, इसमें नथिंग। नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है इज ए कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इसमें क्या है, all three is correct of course। okay, how many is the statement? only three is correct, four is incorrect। agriculture activity is not। शायद ये तो हमने भी मतलब ये तो हमें भी लग रहा था कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, पहली बात ये कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, नंबर एक। ये बिजनेस लोन देने में या एडवांस देने में, इसके अलावा शेयर एक्वायर करने में, स्टॉक बॉन्ड डिबांचर सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ ऑल लाइक नेचर लाइक leasing, hire, purchase, insurance, differentiated business, but does not include any institution was
प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इज दैट ऑफ एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी को ये क्या नहीं करती है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इंक्लूड करती हैं, और ना ही परचेज और गुड्स, अगर कोई चीज परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल से रिलेटेड उसको भी इंक्लूड नहीं करती है, एक्सेप्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को ये परचेजिंग एंड सेलिंग वो होती है, ना ही ये कोई सर्विस प्रोवाइड करती हैं, एंड ना ही कोई सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इस तरह से किसी भी चीज में ये इन्वॉल्व नहीं होती है कोई नॉन बैंकिंग एक्टिव। बिकॉज हमने देखा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ओके ये आ गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, चिट फंड हो गया, अदर कोई फंड हो गया, सिक्योरिटी हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के, इस सारी चीज़ों में, इंश्योरेंस में, इन सारी चीज़ों में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। कंपनी एक्ट 1956 के अंदर आती हैं, बट ये किसी भी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, गुड्स एंड सर्विसेज सेलिंग एक्सेप्ट सिक्योरिटी, इसके अलावा और इंडस्ट्रियल जो भी चीज़ें होती है, बनाना वगैरह, गुड्स सर्विस बनाना, इस तरह किसी भी चीज़ में क्या नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती। तो हमने ये देखा। इसके अलावा इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि जो कंपनी, जो गारंटी कंपनी होती हैं, गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है, उन्हें एक गारंटी जो उस सम पे मेमोरेंडम हुआ है वो ही पे करना होता है। अगर उनका अपना काम वाइंड अप करना हो तो भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही होती है। प्रॉफिट बनना है तो अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ घाटा वगैरह हो गया वाइंड अप करना हो तो क्या करेंगे, एक जो जिस एग्रीमेंट हुआ है जिस सम पे वो सिर्फ पे करेंगे, इसमें कोई स्टेक होल्डर नहीं होता, बस जो इसके कंपनी को ओन करते, चाहे आप उनको मेंबर कह ले, गारंटर कह ले, वो होते हैं, एक छोटा सा अमाउंट पे करते हैं, वो स्मॉल सा अमाउंट, अगर इनको अपनी कंपनी वाइंड अप करनी पड़ जाए। तो हमने एक ये देखा, 90 कंपनीज 2013 के अंदर ये आती हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा, शेल कंपनीज देखी, जिनका मतलब एक एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड तो है, बट ना ही वो कोई एग्जिस्टेंस है उनका, ना ही वो कोई वर्किंग कर रही है, ना ही उनका कोई एसेट है, बस बेसिकली टैक्स उसको बचाने के लिए क्या किया गया, बनाया गया। इसके अलावा हमने वो 2 क्वेश्चन और देखे थे, तो 3 क्वेश्चन हुए। और कोई क्वेश्चन जैसे ये भी हमने देखा कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को क्या नहीं करती है, इंक्लूड नहीं करती है। इसके अलावा और क्या हमने देखा, शेयर कंपनी तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, इफ समवन कैन गो, ऐसे ना समझाने वाला कुछ नहीं था इसमें। एक एक में हमने देखा था कि भाई क्यों जो है प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं उनके प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, भाई इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, गुड गवर्नेंस नहीं है, ये भी एक रीजन है। ओवरऑल भी हो जाता है, ना ही कोई ऑप्टिमाइजेशन है इनपुट आउटपुट रेशियो का, दिस ऑल आर द रीजन फॉर नॉट a good work because of they are not able to complete the infrastructure project on time. So I think this was a little clear recall of the things. Thank you for listening. It's not a big video, it's just 17 minutes long. Okay, enjoy people, have a good day. Thank you.